سر سب سے پہلا سوال آپ سے ہے کہ سر آپ اپنے پس منظر کے بارے میں بتائیں ہمارے دیکھنے سننے والوں کو، ساتھ ہی کس شہر میں آپ پیدا ہوئے اور کہاں پر آپ نے پرورش پائی، ساتھ ہی تعلیمی پس منظر کے بارے میں بھی جو ہے اس پر روشنی ڈالیے۔ ریحان بھائی، میں بتاتے ہوئے مجھے فخر بھی ہوتا ہے اس بات پر کہ میرے جد امجد جن کا نام منشی ولی اللہ ولی تھا، وہ اتر پردیش سے 58 کے بعد وہ نقل مکانی انہوں نے کی، ناگپور تشریف لائے وہ، اور یہیں آ کر بس گئے۔ ان کے دیگر بھائی بھی تھے، وہ بھی آ کے بس گئے اور یہاں پر کپڑوں کی تجارت کرنے لگے وہ۔ تو منشی ولی اللہ صاحب جو تھے وہ بھی اچھے شاعر تھے، اور چونکہ پیسہ تجارت اچھی تھی، ان کی کپڑوں کی تجارت چل پڑی تھی، تو یہاں پر شعر و شاعری کا اس وقت میں مولانا ناطق وغیرہ بھی یہاں موجود تھے ناگپور میں، تو وہ باقاعدہ طور سے شعر و شاعری بھی کرتے تھے، ان کے گھر میں محفل بھی ہوا کرتی تھی شعر، اور اچھا ایک ماحول بنا ہوا تھا اور متمول تھے۔ ابا جی کی پیدائش وہیں ہوئی، تو ہمارے والد صاحب جو تھے وہ ذہین تھے بچپن سے، تو ان کے والد نے بھی ان کو پڑھانے کا شوق ہوا ان کو، تو انہوں نے ان کو LLB کرایا۔ تو اس زمانے میں 1934 میں ابا جی نے LLB کی ڈگری حاصل کی، جبکہ ہمارے ہاں یہ کہنا چاہیے کہ مسلمانوں میں شاید چند لوگ تھے جنہوں نے لا گریجویشن کیا تھا، بلکہ انصاری برادری میں تو ایک بھی نہیں تھا کوئی 1934 میں لا کرنے والا، تو وہ لا گریجویٹ تھے، اور اس زمانے میں انہوں نے ناگپور یونیورسٹی میں ٹاپ بھی کیا تھا، میرٹ میں آئے تھے وہ۔ تو ایک حساب سے ایک ہم لوگوں کے لیے بھی بڑی بات تھی کہ بھئی ابا ایک ایسی فیملی سے تھے، اور کیونکہ ابا کا مزاج بھی، کیونکہ گھر میں شعر و ادب کا ذکر ہوا کرتا تھا، محفلیں ہوتی تھی، تو ان کو بھی شعر شاعری کا شوق تھا، لیکن وہ شعر کہتے تھے اور ڈائری میں لکھ لیا کرتے تھے۔ بلکہ میں نے ایک دن ان سے پوچھا بھی، میں نے کہا کہ بھئی آپ شعر کہتے ہیں، ڈائری میں لکھ لیتے، سناتے نہیں آپ کسی کو؟ تو پھر انہوں نے ایک عجیب واقعہ مجھے سنایا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب دیکھیے یہ بلکہ میرے ساتھ ہوا ایک واقعہ کہ پڑھتا تھا ہائی اسکول میں، تو اس وقت تھوڑا رات کے 3 بجے قریب میں مشاعرے سے لوٹا، مشاعرہ سن کر۔ تو ابا نے کہا کہ بھئی تم نے مشاعرہ سن کر آئے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو بولے کتنے شعر یاد ہے تم کو؟ میں نے کہا نہیں شعر یاد تو نہیں ہے۔ تو بولے ٹھیک ہے کتنا بج رہا ہے؟ میں نے کہا 3 بجا ہے۔ تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے سو جاؤ۔ جب میں گھر چلا گیا، پھر گھر میں اندر چلا گیا، سویا، 10 بجے 11 بجے اٹھا، تو مجھ سے وہ کہنے لگے کہ بھئی آپ جو ہے جب آپ کو ایک بھی شعر یاد نہیں رہا مشاعرہ سن کر آنے کے بعد میں، تو بولے کیا فائدہ ہے؟ بولے مشاعرہ سن کے شعر تو یاد ہونا چاہیے، تم بھی شعر کہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں شعر کہتا ہوں میں کبھی کبھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی شعر سناؤ، تو میں نے بھی اپنا 1-2 شعر سنایا ان کو، ہے نا۔ تو ایک شعر تھا اس میں، حیات کی دعا ہے ہر شام و سحر، مٹ جائے یہ گرانی مٹ جائے یہ قہر۔ تو انہوں نے کہا کہ شعر تو اچھا کہا ہے بولے تم نے، اور سناؤ۔ تو میں نے اس طرح سے 1-2 شعر سنایا ان کو۔ پھر مجھ سے کہنے لگے بیٹا میں بھی شاعری کرتا ہوں اور مجھے بھی شوق ہے بہت شعر کہنے کا، لیکن باقاعدہ طور سے اس میں غرق نہیں رہتا بولے، اور میں بھی تم کو یہ کہتا ہوں کہ تم بھی جو ہے اس میں بہت زیادہ مصروف مت رہو بولے، پہلے پڑھ لو، پہلے ڈگری حاصل کرو، پھر برسر روزگار ہو، نہیں تو پھر آدمی پھر ہوتا ہے یہ زندگی مستقبل خراب ہو جاتا ہے شعر شاعری میں اگر ابتدا سے پڑھ جائے تو۔ پھر انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا کہ میرے ایک استاد تھے، تو میں بھی 8 کلاس میں بولے میں شعر کہتا تھا، تو میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو شاعری وہ کرتا ہے جس کو کسی کی بد دعا لگ گئی۔ تو یہ جملہ انہوں نے کچھ اس انداز سے میرے استاد نے کہا تھا کہ میں نے اس دن سے توبہ کر لی کہ میں شعر باقاعدہ شاعر نہیں کہلاؤں گا۔ تو انہوں نے شاعری سے توبہ تو نہیں کی تھی، لیکن بہرحال شعر نہیں کہتے تھے وہ زیادہ علل اعلان۔ اب وہی حال شاید میرا رہا کہ ابا نے اس انداز سے یہ واقعہ سنایا کہ میرے دل میں بھی بیٹھی کہ مجھے کسی کی بد دعا نہیں چاہیے، تو میں نے بھی شاعری سے توبہ کر لیا، نثر کی طرف آ گیا میں۔ تو ابتدائی تعلیم میری جو ہے وہ ناگپور کارپوریشن اسکول پرائمری اسکول تھا ناگپور میں موہن پورہ میں، وہاں ہوا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ جو ہمارے استاد تھے پرائمری اسکول میں مجھے ملے پہلی کلاس میں، وہ ایک بمن تھے، پنڈت تھے، ہم لوگ ان کو گرو جی بولتے تھے اس زمانے میں، اور وہ اتنے ڈیووٹڈ ٹیچر تھے کہ وہ مجھے آج بھی ان کا اسٹائل اور ان کا انداز جو ہے بچوں کو چاہنے کا انداز وہ نظر آتا ہے کہ ایک دم ٹوٹ کے پڑھاتے تھے اردو کو۔ تو ان سے میں نے مطلب الف ب کا قاعدہ شروع کیا، اور پہلی اور دوسری انہوں نے ہی پڑھائی مجھے، اور پھر اس کے بعد تو چینج ہوتے رہے اساتذہ۔ پھر پرائمری اسکول کے بعد میں ہائی اسکول میں نے انجمن ہائی اسکول سے کیا، پھر مورس کالج سے گریجویشن کیا،
اور اس معاملے میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اساتذہ مجھے بڑے اچھے ملے، اور ایسے اساتذہ ملے جس خاص طور سے کالج کے زمانے میں تو بہت اچھے اساتذہ ملے. ڈاکٹر پروفیسر رفیع الدین صاحب وہ میرے استاد تھے جنہوں نے مجھے پڑھایا. پروفیسر ہمارے منشاء الرحمان منشا صاحب تھے، وہ ایک بڑے اچھے شاعر بھی تھے اور اس زمانے میں بھی ان کی بڑی شہرت تھی. اور پروفیسر سید رحیم صاحب، ان لوگوں کی مجھے تربیت حاصل رہی اور ان سے میں نے بڑا اکتساب کیا ہے. تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ بھی میرے استاد اساتذہ نامور شخصیات تھی. اور ابتدائی اور کیا ہو سکتا ہے، باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے مڈل کلاس کے لوگ ہیں، تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا وہی بھورے پھرانا، وہی پتنگ اڑانا، وہی بچپن میں شرارتیں کرنا. اب جس کو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں. بچپن میں ہم نے وہ تمام کیے کام جو ہمارے اساتذہ یا ہمارے بڑے کر چکے تھے. گھر میں جی سر. محلے میں بھی کھیلتے تھے. سر آپ نے تو بتایا آپ کا مشاعرے اس کے سن کر واپس آنے کے بعد کا حال، لیکن بہرحال پھر بھی لکھنے کا جو سفر ہے آپ کا کس طرح شروع ہوا، اور افسانہ جو پہلا آپ کا جو ہے کب شائع ہوا، اور وہ افسانہ آپ نے کس طرح لکھا؟ وہ اصل میں کیا ہے، ہمارے گھر میں جو تھا وہ ماحول تھا. ہاں، ہمارے گھر میں جو ہے وہ ماحول تھا شعر شاعری کا اور لکھنے لکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا. اس زمانے میں کھلونا آتا تھا. ہمارے والد صاحب جو ہے بچوں کو کی تربیت کے لیے کھلونا لاتے تھے. پھر نور آتا تھا ہمارے ہاں، اور خدا آتا تھا، ہما آتا تھا، نگار آتا تھا. نگار کے بڑے شمارے تھے نیاز فتح پوری کے. والد صاحب کو بڑا شوق تھا ان کا. تو یہ اکثر ہمارے ابا کے ٹیبل پہ رکھا رہتا تھا. ہم لوگ پڑھتے بھی تھے. نور اور کھلونا کے ہم لوگ تو دیوانے تھے. بچپن میں پڑھتے تھے باقاعدہ. آتے تھے تو ہم بھائی بہن جو ہے بڑا جھپٹتے تھے اس کی طرف میں. تو میرا خیال ہے میری عمر اس وقت میں شاید 15 یا 16 سال رہی ہوگی. تو اس وقت پڑھتے پڑھتے لکھنے کا بھی شوق تھا. تو میں نے ایک کہانی لکھا تھا، سمجھے، پیار کا بھوکا، اس عنوان سے. اور اس کو میں نے پہلے انقلاب میں بھیجا جو 1972 میں شائع ہوئی، اور پھر وہی کہانی میں نے پھر نور میں بھیجی تو 1974 میں. تو پہلی کہانی میری 1974 میں پیار کا بھوکا نام سے شائع ہوئی. تو اس وقت جب کہانی آئی، انقلاب میں شائع ہوئی تھی تو شاید اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی مجھے، لیکن نور میں جب شائع ہوئی وہ، اور کھلتی کلیاں کے عنوان سے انہوں نے نئے لکھنے والوں کو شامل کیا تھا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور اس کا اندازہ آپ یہ لگائیے کہ اس زمانے میں میم ناگ ہمارے بڑے بڑے مطلب افسانہ نگار ہیں، وہ ہمارے بڑے بھائی کے دوستوں میں سے تھے. تو وہ خاص طور سے گھر پر آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کا وہ کہانی میں نے پڑھی ہے، بہت اچھی لکھی ہو، مبارک ہو آپ کو. اور اسی طرح سے ان کے ساتھ میں ایک انیس احمد بھی رہتے تھے، وہ بھی افسانے لکھتے تھے. ان کی شمع وغیرہ میں افسانے شائع ہوتے تھے. تو انہوں نے بھی مبارکباد دی آ کے مجھے. تو اس وقت مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مطلب لکھیں اور اس کو شائع ہوتی ہے رسالوں کے اندر، تو کتنی پذیرائی ہوتی ہے اور کتنی داد ملتی ہے. تو وہ سچی خوشی مجھے اس وقت ہوئی تھی. پہلا کہانی شائع ہوئی تھی میری. پیار کا بھوکا آپ کی پہلی کہانی تھی، اور وہ بھوک آج تک آپ کی مٹی نہیں ہے. اور الحمدللہ اس کے بعد آپ کے اور بھی ہم لوگوں نے افسانے افسانچے یہاں تک کہ ناول بھی پڑھا ہے. تو آپ سے اب یہ جاننا ہے کہ آپ کے افسانے کے موضوعات کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ کون سے موضوعات آپ کو زیادہ متاثر کرتے ہیں، اور کس قسم کے کردار اور حالات آپ کے افسانوں میں نظر آتے ہیں؟ اصل میں ریحان بھائی، انسان جو ہے وہ ایک معاشرے میں رہنے کا مطلب عادی ہے. اور ایک شاعر یا ادیب جو ہوتا ہے وہ آنکھیں کھول کر رہتا ہے، حساس ہوتا ہے. معاشرے میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دوسروں کے ساتھ حساس آدمی جو ہے اس کو زیادہ احساس ہوتا ہے اس واقعے کا. تو ظاہر بات ہے کہ ہم بھی جو اپنی کہانیاں یا کچھ لکھتے ہیں تو اسی سے متاثر ہو کر لکھتے ہیں. کیونکہ شاعر بھی جو ہے یا ادیب بھی یا افسانہ نگار بھی تو وہ بھی ایک معاشرے کا حصہ ہے. اور چونکہ حساس ہوتا ہے تو وہیں سے اس کو کہانیاں ملتی ہیں، روزمرہ کی زندگی میں مل جاتی ہیں کہانیاں. تو آپ اس لیے میرے کہانی عام طور سے اس کے عنوانات، اس کے موضوعات جو ہے میں عام طور سے اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہی لیتا ہوں. جی سر، اصل میں فطری جو کردار جب ابھرتے ہیں کہ ہم وہ کردار آس پاس سے اٹھائیں،
کہانی آس پاس سے اٹھانے سے اس میں جو ہے فطری جو رس گھلتا ہے تو وہ ایک الگ ہی بات آتی ہے. اور مجھے بھی آس پاس کے موضوعات اٹھانا ہی پسند ہے. بہرحال آپ کے تخلیقی عمل کے بارے میں ہمیں جاننا ہے کہ افسانہ لکھنے کا آپ کا کیا طریقہ ہے اور کیا کوئی خاص وقت یا ماحول ہوتا ہے جب آپ لکھتے ہیں. تو اس تعلق سے جو ہے ہمارے نئے لکھنے والوں کو آپ بتائیے کہ اس تخلیقی عمل کے بارے میں آپ بتائیے. دیکھیے تخلیق کار جو ہوتا ہے نا تو اس کی تخلیق کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا اصل میں، اور نہ کوئی خاص جگہ ہوتی ہے. تخلیق تو کہیں پر بھی ہو سکتی ہے، چلتے پھرتے بھی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، جیسے ایک میں نے آپ کو ابھی حکمت الہی کر کے ایک میں نے کہانی سنائی آپ کو، تو وہ کہانی بھی بالکل فی البدی کہانی ہوئی وہ افسانچہ ہوا ہو، کہ جس کے اندر ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ بھئی کسی ایک صاحب نے کہا کہ بھئی فلاں آدمی گر گیا تھا، اور دوسرے نے بتایا کہ بھئی یہ اللہ نے اس کو بچا لیا. تو پہلے والے شخص نے کہا کہ بھئی اگر کو اللہ کو بچانا ہی تھا تو گرایا کیوں اس نے. تو یہ بات مجھے ذرا کلک ہوئی، تو میں نے فوراً میں یہ واقعہ جو ہوا اتفاق سے کامٹی میں ہوا میرے ساتھ میں کامٹی سے ناگپور آتے آتے جو ہے وہ کہانی میں نے میرے ذہن میں بن گئی، اور میں آنے کے بعد میں صفحہ کرتاس پہ میں نے لکھ لی وہ کہانی، فی البدی کہانی. اس طرح سے کہیں نہ کہیں آدمی کے کسی کونے میں، دل کے کسی کونے میں کوئی احساس جاگتا ہے جب، تو کہانی بن جاتی ہے، تخلیق ہو جاتی ہے. تو ضروری ہے اصل میں، اور حساس آدمی جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات کلک ہوتی ہے، لگتی ہے، تو وہ تخلیق ہو جاتی ہے اس طرح سے. جیسا کہ سر آپ نے ذکر کیا کہ ایک کہانی جو کامٹی میں آپ کے سامنے میں کامٹی سے شروع ہوئی اور راستے میں وہ کہانی بن گئی. بہرحال کہانی لکھنا ہے تو ہم کاپی کتاب لے کر بیٹھ جائے، قلم لے کر بیٹھ جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ کچھ لکھ پائے. واقع میں یہ ایک عمل ایسا ہے، فطری عمل ہے کہ انسان چلتے پھرتے بھی لکھ لیتا ہے، ورنہ ایسا بھی وقت آتا ہے کہ سالوں یا مہینوں گزر جاتے ہیں اور ہم کچھ لکھ نہیں پاتے. بہرحال آپ بالکل نے صحیح کہہ کامٹی رہے کا ذکر کیا، آپ نے ہیں. جی کامٹی جی کا ذکر کیا تو میں بتا دوں کہ شاہد کبیر، وکیل نجیب، ڈاکٹر محمد اسد اللہ اور ڈاکٹر محمد اظہر حیات، ان کی کامیابی کے لیے اگر کہا جائے تو ان کی کامیابی کے پیچھے کامٹی ہے، کیونکہ کامٹی ان چاروں کی جو ہے وہ سسرال ہے. تو ڈاکٹر اظہر بالکل حیات سر صحیح کی کہہ سسرال جو ہے، ڈاکٹر اظہر حیات سر کی جو سسرال ہے وہ بالکل میرے گھر کے ایک گھر کے بازو ہے. تو کامٹی سے آپ کا رشتہ بہت گہرا ہے اور آپ نے نہیں کئی عام طور کہانیاں لکھی ہیں، جی کئی کہانیاں لکھی ہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ نے وہ موضوعات کامٹی کے بھی اٹھائے ہیں. آپ نے کامٹی کے ایسے کردار، کامٹی کے آپ کا ایک گورا بازار جو کامٹی میں ہے ہاں ایک وہاں پر جی ہاں جی ہاں اس کا ایک افسانہ ہے وہ بھی اس ایک، میں. ہاں جی ماموں جو ہے جن کو جگ جی ماموں ہاں کہا جاتا ہے، وہ کردار آپ نے زندہ کیا. وہ جب الفاظ میں وہ شائع ہوا تھا اور الحمدللہ جی کامٹی میں بہت زیادہ اس کو جو ہے پذیرائی ملی تھی اور بہت لوگوں کو پسند آیا تھا. وہ کردار بھی پسند آیا تھا اور آپ کی وہ کہانی بھی جو ہے بہت پسند آئی تھی. تو بہرحال موضوعات تو بکھرے پڑے رہتے ہیں، ہمیں اسے اٹھانا ہوتا ہے، آس پاس سے اٹھانا ہوتا ہے. آپ کے پسندیدہ افسانہ نگار اور ان کی کون سی تصانیف آپ کو متاثر کرتی ہے؟ کون سے مصنفین آپ کے پسندیدہ ہیں اور ان کی کون سی کتابیں یا افسانے جو ہے آپ پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ اس تعلق سے تھوڑا سا بتائیے. اصل میں کوئی بھی طالب علم جب پڑھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ خاص طور سے ہم لوگوں کا جو دور تھا اس زمانے میں تو ظاہر بات تھی کہ بھئی پریم چند کو تو پڑھتے ہی تھے لوگ. ہمارے کورس میں بھی رہا ہے، نصاب میں شامل ہے، پریم چند رہا، کرشن کے افسانے رہے ہیں. سعادت حسن منٹو جو ہے ان کو میں نے بڑے شوق سے پڑھا ہے. اور اتفاق سے میں بتا دوں کہ میں سعودیہ میں تھا، وہاں ایک لائبریری تھی بڑی اچھی سعودی عرب میں، دہران میں تھا میں، تو ہماری کمپنی کی ایک لائبریری تھی. تو اس میں ہندوستان پاکستان کے رسائل اور کتابیں جو ہے کافی بڑی تعداد میں تھی، اور منٹو کے اوپر بڑے اچھے مواد تھا وہاں پر. تو وہاں پر میں نے جو ہے منٹو کو خوب اچھے انداز میں پڑھا، اس کو تفصیل سے. تو سعادت حسن منٹو جو ہے وہ مجھے متاثر بھی کی ہے، کیونکہ وہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے بہت ساری کہانیاں لیتے تھے، اٹھاتے تھے وہ، تو اس لیے وہ دل کو چھوتی تھی. تو پہلے تو ظاہر بات ہے پریم چند ہے، پھر کرشن چند ہے، سعادت حسن منٹو ہے،
اور वाजदा तबस्सुम जो है उनको भी मैंने पढ़ा है ना? तो ज़ाहिर बात है राजन सिंह बेदी है, इस्मत चुगताई है, कुर्रतुल ऐन हैदर है। ये तमाम मेरे पसंदीदा अफ़साना निगार हैं, नावल निगार हैं, जिनको पढ़ा भी है और बहुत कुछ सीखा भी है इनसे मैंने। अगर मैं ये कहूँ कि मौजूदा दौर में प्रोफ़ेसर गज़नफ़र साहब जो हैं, तो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी अफ़साने, उनकी तहरीर, उनका उसलूब मुझे बहुत पसंद है, प्रोफ़ेसर गज़नफ़र साहब का। और ज़किया मशहदी जो हैं, वो भी मैं उनके अफ़साने कहीं भी आते हैं सामने तो मैं ज़रूर उनको पढ़ता हूँ। वो मेरी पसंदीदा अफ़साना निगार हैं वो। सलाम बिन रज़्ज़ाक़, उनको पसंद करता हूँ मैं। और काज़ी मुश्ताक़ अहमद साहब पूना से जो है जिनका ताल्लुक़, वो भी मेरे बड़े पसंदीदा है, बल्कि उनकी एक बाज़याफ़्त करके मजमुआ आरा-ए अफ़सानों का, तो उसमें मैंने उनकी वो किया था, तारीफ़ किया था, उनको पसंदीदा का इज़हार किया था मैंने। तो उन्होंने कहा है कि भई ये किताब जो है बाज़ियाफ़्त एक काम करते हैं कि आपके यहाँ से छपा लेते हैं। तो अल्फ़ाज़ हिंद के प्रेस से ही बल्कि वो शाया हो रही है किताब वो, और अनक़रीब शायद मंज़र आम पर भी आ जाएगी। उसमें मेरा पेश-ए-लफ़्ज़ भी उन्होंने कहा कि भई आप ही लिखिए इसके ऊपर पेश-ए-लफ़्ज़। तो मैंने उनके अफ़सानों के ऊपर जो है एक पेश-ए-लफ़्ज़ भी लिखा है, अफ़सानों की किताब पर। तो इस तरह से ये लोग मेरे पसंदीदा रहे हैं और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और अभी वो सीखने का अमल जो है जारी है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आपकी तहरीरों में माशरती जो मसाइल की झलक कितनी मिलती है, और अब आपके अफ़साने माशरती मसाइल को किस तरह उजागर करते हैं? क्या आपने किसी ख़ास मसले पर जो है अफ़साना लिखा है? हाँ, जैसे आपने फ़रमाया कि अफ़साना निगार जो होता है, वो ज़ाहिर बात है कि भई माशरे से जुड़ा होता है। तो माशरे के हर मसाइल से अफ़साना निगार या अदीब और जो है हसास आदमी उससे मुतासिर होता है। तो ज़ाहिर बात है कि कोई भी माशरे में, समाज में ऐसी कोई बात घटना होती है, तो उससे उसके ऊपर जो है वो कलम उठाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़र्ज़ भी है। ये हमारा कमिटमेंट भी होना चाहिए कि हम, लेकिन जैसा आपने फरमाया कि भई हम उसका क्या हल है, तो अफ़साना निगार या अदीब जो होता है वो हल पेश नहीं करता है, बल्कि समाज को आईना दिखाता है। अब वो जो लोग हैं उसके तदारुक वो करें, आईना देखकर उसमें कि भई समाज के अंदर कौन-सी बुराई है, तो बुराई को दूर करने की कोशिश नहीं करता वो, समाज की ही बुराई है। अब जो लोग समाज सुधारक हैं, इस्लाह करने वाले लोग हैं, वो अपना इस्लाह करें, उस तरफ ध्यान दें, जिस तरफ ध्यान दिया मतलब अदीब ने या अफ़साना निगार ने तवज्जो दिलाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अफ़साना निगार का या अदीब का काम जो है, वो आईना दिखाने का है और उसपे उसका तदारुक जो है, जिस मसले पर अफ़साना लिखा गया है ये, जैसे मेरा ये एक अफ़साना जो है अभी आपने समाअत फरमाया दहशतगर्द। तो मैंने एक आईना दिखाया है कि समाज के अंदर जो है इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं, कि वाक़यात होते हैं, उसको दूसरी शक्ल पॉलिटिकल लोग जो हैं उसको दूसरा अंदाज़ दे देते हैं। तो अब जो लोग हैं इसमें पेश-पेश समाज के सुधार में, तो उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए उनको कि ऐसा माहौल ना बने। क्या आपके अफ़सानों में कोई पैगाम होता है? क्या आप अपने क़ारीन को कोई ख़ास पैगाम देना चाहते हैं? या किस किस्म का असर आपके अफ़सानों पे डालना चाहते हैं? ये इस ताल्लुक से भी थोड़ा-सा बताइए कि जब आप लिखते हैं, अफ़साना लिखते हैं, तो आपके ज़हन में पैगाम होता है? हाँ, रेहान भाई ये तो बात सही है कि मैं जब भी मैंने कोई अफ़साना लिखा है या कोई तख़लीक़ हुई है, तो उसके अंदर बग़ैर पैगाम के, बग़ैर किसी इसके जो है वो बात मतलब कलम ही नहीं उठता। बल्कि ये ज़हन में रहता है कि इसके पीछे मेरा क्या मकसद होना चाहिए। बेमकसद तहरीर नहीं होती है, बल्कि मकसदी तहरीर होती है। कहीं न कहीं पैगाम छुपा होता है, कहीं न कहीं मैं उस तरफ मान लीजिए अगर कोई एक मसला है समाज का, उस पे अगर हम लिख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि भई उसका असर क़ारी के ऊपर पड़े, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर बात है कि मेरा जो है ये है पॉज़िटिव अप्रोच है मेरा। मैं मुस्बित सोच रखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुस्बित सोच जो है वो लोगों तक, क़ारी तक पहुँचे। और मैंने महसूस किया है कि कुछ जब मैंने कोई अफ़साना सुनाया है या किसी ने क़ारी ने पढ़ा है, तो उसके तासुरात जो मुझे मिले हैं, वो पॉज़िटिव मिले हैं। तो उससे अंदाज़ा हुआ है कि मैं अपनी बात कहने में कामयाब हूँ। मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ, तो वो पैगाम पहुँचता है लोगों तक। और बेमकसद तहरीर जी तो सर। वैसे भी अच्छी नहीं होती है। जी सर, सही बात है।
सर, नए लिखने वालों के लिए कोई मशवरा, आप नए अफसाना निगारों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? साथ ही कौन सी गलतियां नए अफसाना लिखने वाले करते हैं और उनको किस तरीके से आप बचने का जो है मशवरा देंगे? तो नए लिखने वालों के ताल्लुक से थोड़ी सी उनकी रहनुमाई करिए सर। अब ये देखिए, जो लोग पुख्ताकार होते हैं तो उनसे रहनुमाई मांगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो अपने आप को अभी भी तिफ़्ल मकतब समझता हूँ इस मामले में। लेकिन हाँ, एक टीचर की हैसियत से, एक मुदर्रिस की हैसियत से ज़िंदगी भर मैंने वही काम किया है, तो मैं अपने तलबा और तालिबात को भी अक्सर यही बताता हूँ। एक तो पहली बात तो मुताला बहुत ज़रूरी है इसके लिए। आप जो भी करें तो मुताला, बगैर मुताले के आदमी लिख नहीं सकता। तो जब तक आपके पास में अल्फाज नहीं होंगे, जब तक आपके पास में मुताला नहीं होगा, दूसरों को नहीं देखेंगे आप किस तरह से लिखी जाती है, क्या टेक्निक होती है, तो खुद भी नहीं लिख सकते। अब मैं अक्सर ये कहता हूँ अपने तलबा को कि भई आप लोग जो है कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, क्योंकि ख़ास तौर से अदब का तालिब इल्म अगर है, तो उसको लिखना ज़रूरी है, वो एक कमिटमेंट रहता है उसका। समझे, वो मुआहदा है कि आपको पढ़ना है और लिखना है। तो पहले तो पढ़ना है, शर्त है मुताले की, और दूसरा ये कि लिखना भी है। अब लिखने के लिए मैं उनको इंस्पायर करने के लिए अक्सर ये कहता हूँ कि आप कुछ भी लिखें, यहाँ तक कि डेली डायरी लिखें। अगर आप डेली डायरी भी लिखते हैं, तो उसमें भी मशक होती है। लेकिन मसला ये हो गया है आजकल कि लिखने से हमारा कलम और कॉपी से हमारा रिश्ता बिल्कुल टूट गया है। अभी ख़ास तौर से नई नस्लों का तो बिल्कुल टूटते जा रहा है। वो कलम हाथ में लेते ही नहीं है, कॉपी हाथ में लेते ही नहीं है। बस मोबाइल हाथ में है उनके, तो उसी से चल रहा है काम। तो मुझे ऐसा लगता है कलम और कागज़ का और ज़हन का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि इसके अंदर अगर जितनी मज़बूती होगी तो उसमें पुख्तगी आएगी। अब बहुत से अक्सर कहते हैं, और मेरी बात भी होती है कुछ लोगों से, तो ये कहते हैं कि भई जब तक अच्छा ना लिखें तो आपको लिखना नहीं चाहिए। तो मुझे उसमें इख्तिलाफ़ है। मैं ये कहता हूँ कि आप लिखें, खूब लिखें। अच्छा बुरा जो है आपका कारी फ़ैसला करे कि अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है। और लिखते-लिखते ही कोई चीज़ अच्छी निकल आती है, जिससे उसको मतलब शोहरत मिलती है या उसका नाम होता है या उसकी इनफ़रादियत पैदा होती है, लिखते-लिखते ही होता है। आप कहेंगे अच्छा लिखने के चक्कर में ना लिखेंगे, तो ज़ाहिर बात है कि वही रह जाएगा मामला, तो अच्छी चीज़ सामने नहीं आएगी। जी सर, मैं इस बात का शाहिद हूँ कि महाराष्ट्र में जहाँ तक गालिबन मेरे ख्याल से जो अफसानचों पर जो पहली वर्कशॉप हुई है, सर वो आपने ही अरेंज किया था आपके कॉलेज में, अंजुमन गर्ल्स डिग्री कॉलेज सदर में जो है। तो वाकई में तलबा के लिए आप हमेशा, और आपने काफ़ी अपने जो तलबा है, ख़ास तौर से जो नागपुर से जिनका ताल्लुक है, आपने हौसला हौसला दिया, और बहुत सारे नए लिखने वाले जो है आपने जो है वो उर्दू अदब को दिए। तो ये आपकी इंकिसारी है कि आप तुफ़्ल मकतब आज भी अपने आप को समझते हैं। लेकिन बहरहाल आपने काफ़ी जो है नागपुर की अदबी ज़मीन को ज़रख़ेज़ किया है। तो सर, अब आइंदा आपके जो मंसूबे हैं उस ताल्लुक से थोड़ा-सी बात करते हैं कि क्या आपकी किसी नई किताब या अफ़साने का मजमूआ जो है उस पर कोई काम चल रहा है? और आपके आइंदा जो है वो आपका क्या-क्या अदब के हवाले से आपके जो मंसूबे हैं, उस ताल्लुक से थोड़ी-सी रोशनी डालिए सर। रेहान भाई, मैं ये मतलब बिल्कुल खुलेआम ये बात मैं कहता हूँ, मुँह देखी बात नहीं है, बल्कि सच बात तो ये है कि नागपुर कामटी में जो माहौल आपने बनाया है, रेहान कौसर ने, तो वो वाक़ई यादगार है और तारीख़ में हमेशा याद रहेगा कि रेहान कौसर ने न सिर्फ़ 100 लफ्ज़ों की कहानियाँ की किताब लाई बहुत जल्दी, और बल्कि लोगों को मुतासिर करके लोगों को राग़िब भी किया है, एक माहौल बनाया है। यानी आप अपने लिए आप खुद कर जाते काम, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम ना होता। लेकिन लोगों को तैयार करना, उस तरफ राग़िब करना, तो ये एक बड़ा काम कर रहे हैं आप। तो उससे मैं भी मुतासिर हुआ हूँ। तो ये गाहे-बगाहे जैसे आप कभी अरेंज कर लेते हैं, कोई प्रोग्राम कर लेते हैं, अक्सर मैं भी शरीक हुआ हूँ उसके अंदर। अब तो बल्कि ये हालत हो गई है कि आप तो मुनक़्क़िद करते ही करते थे, दूसरे लोगों ने भी इसका इनेक़ाद शुरू किया है, अफ़सानी महफ़िलें और अफ़साने मजालिस बाकायदा होती है, और उसमें मुझे भी शिरकत का मौका मिलता है। तो उस बहाने क्या होता है कि एक इंस्पिरेशन मिलते रहता है और आदमी को लिखने-लिखाने की तबीयत राग़िब होते रहती है। जो 2024 में मेरी एक किताब आ रही है, शख्सियात के ऊपर मज़ामीन का मजमूआ है ना? तो वो एक आ रही है, और उसके बाद में 2025 में मेरा पूरा ख़्याल ये है कि एक अफ़सानवी मजमूआ शाये हो जाए मेरा। तो उसमें मैं आपकी मदद लूँगा शाये करने के लिए। तो इतना हो गया है, अफ़साने इतने हो गए हैं कि उसको शाये किया जा सकता है किताबी सूरत में। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगी वो।
एक अफसानवी मजमुआ। और उसके अलावा जो है पता नहीं क्या बात है कि राग़िब हो रही है, क्योंकि मेरी ज़हन में आ रहा है कि कुछ अपने मुतालिक जो है मेरी जो ज़िंदगी गुज़री है, तो उसमें भी कई ऐसे पहलू हैं जिसमें कहानियाँ बन सकती हैं अच्छी। और तो वो लिखने की तबीयत होती है कभी-कभी। तो कुछ लिखा भी है मैंने, तो वो मैं लिखता हूँ कभी-कभी। हो सकता है कि वो भी आ जाए 2025 में। बस ये मंसूबा है। और एक तंज़-ओ-मज़ा लिखता था मैं। शुरू में मैंने कहानियाँ लिखी, बच्चों के ऊपर मज़ामीन लिखे, जो नूर में और खिलौना वगैरह में शाये हुए। लेकिन उसके बाद में जो है मैं जब कॉलेज में पहुँचा, तो उस ज़माने में शगुफ़ा हमारे यहाँ आता था। तो शगुफ़ा में मैंने काफ़ी तंज़-ओ-मज़ा लिखे। तो फिर कॉलेज की लाइफ़ में जो है 20-25 तंज़-ओ-मज़ा लिखा, कुछ इंशाइये लिखे, शाये भी हुए। तो इस तरह से वो कुल मिला के एक किताब बन सकती है। लेकिन अब वो क्या है, ज़िंदगी के हालात ने जो है हँसना भुला दिया है, तो इस तरह हँसना भूल गए हम, तो अब संजीदा हो गए हैं। तो गया वो, लेकिन एक किताब चूँकि वो एक है हमारी, तो वो इंशाअल्लाह किताबी शक्ल में उस मज़ामीन को शाये करेंगे। तो वो भी एक मंसूबे में है। कुछ किताबों के ऊपर तबसरे वगैरह काफ़ी बड़ी तादाद में है मेरे पास में, तो वो मैं उसको सोच रहा हूँ कि वो भी किताबी शक्ल में शाये कर देता हूँ। पेश लफ्ज़ के तहत भी काफ़ी लिखे हैं, वो भी इरादा हो रहा है। शख्सियात के ऊपर लिखे हैं मज़ामीन। तो इस तरह से मेरा काम है। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बस उम्र में बरकत दे और वक़्त भी साथ दे। इंशाअल्लाह हो जाएगा काम। आपके अफ़सानों या किताबों के अशात के ताल्लुक से जो आपके तजुर्बात हैं, कि आपकी पहली किताब कब शाये हुई? क्योंकि आज किताब शाये करना जितना आसान हो गया है, या डीटीपी वगैरह, तो बहरहाल आपके अफ़साने कहाँ अब तक शाये हुए हैं, और आपकी तख्लीक़ात कहाँ-कहाँ शाये हुई है? और साथ ही साथ आपको अशात के दौरान किन मसाइल का सामना करना पड़ा? उस तजुर्बात पर जो है थोड़ा-सा उसका ज़िक्र कीजिए सर। रेहान भाई, मेरी तो मैंने बताया आपको कि भई पहली कहानी तो 1970 में शाये हुई। और उसके बाद में और भी जगह नूर में शाये हुआ है, इनकलाब में है, हमारी ज़बान में मेरे काफ़ी बड़ी तादाद में मतलब मज़ामीन आए हैं। और अल्फ़ाज़ हिंद में शाये होते रहते हैं। इसके अलावा भी अभी देखिए वो एक अमेरिका से एक शाये होता है अखबार, उसमें भी शाये हुआ। नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, उसमें भी मज़मून शाये हुआ। इस तरह से शाये तो होते रहते हैं। और मुस्तकिल तौर से मेरी थोड़ी-सी ये कमज़ोरी रही है कि मैं भेज नहीं पाता हूँ इशात के लिए। लेकिन बहरहाल गाए-बगाए कहीं न कहीं शगुफ़ा वगैरह में भी शाये हुए हैं काफ़ी मज़ामीन, और सिलसिला जारी है। अब रह गया ये मामला कि मेरी पहली किताब जो थी, अहमद शौक़ी एक मुताला करके किताब आई 1991 में, 91 में। तो वो किताब अरबी एक शायर थे, तो उनके हालात-ए-ज़िंदगी और उनके कलाम पर मेरी किताब है, अरबी मौज़ू पर है वो। और ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि विदर्भ में पहली किताब है अरबी अदब के ऊपर वो। उस एतबार से बड़ी अहमियत है। और पंजाबी यूनिवर्सिटी में बल्कि कोर्स में भी शामिल रही वो एमए के। समझे? नागपुर में भी रेफ़रेंस कोर्स में के तौर पर है वो यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह पहली किताब को पज़ीराई अच्छी हासिल हुई मेरी। और फिर एक दूसरी किताब 94 में एक किताब शाये हुई, हाफ़िज़ विलायतुल्लाह, क्योंकि मेरा तहक़ीक़ की तरफ रुझान हो गया था बाद में। वो थोड़ी मेरी मजबूरी भी थी, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता था, तो ज़ाहिर बात है कि कॉलेज में जो है तहक़ीक़ के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, रिसर्च के ऊपर। तो फिर मैंने अहमद शौक़ी लिखने के बाद में हाफ़िज़ विलायतुल्लाह लिखा। हाफ़िज़ विलायतुल्लाह जो थे वस्त हिंद के पहले अव्वलीन तंज़-ओ-मिज़ाह निगार थे। और उन्हें जो है तंज़-ओ-मिज़ाह में उनका कोई सानी नहीं था। बहुत अच्छा तंज़-ओ-मिज़ाह था उनका। अकबर-ए-सानी कहा जाता था उनको। इतना मतलब अकबर के अंदाज़ में शेर कहते थे, अलीगढ़ के फ़ारिग़ थे। हमारे यहाँ जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब जो थे, उनके वालिद थे वो। तो उनके ऊपर मेरी किताब आई। तो ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि वो किताब कंप्यूटर पर आई 91 में। तो हुआ ये कि कंप्यूटर पर जो है, हमारे यहाँ कंप्यूटर नहीं था उस वक़्त तक। जब मैंने किताब, तो एक साहब थे श्याम भोसकर, समझे? तो उन्होंने उर्दू सीखी पहले। वो सीखने के बाद में उन्होंने उर्दू कंप्यूटर लाया महल में। अब उनको ज़रूरत पड़ी कि कंप्यूटर उर्दू का ऑपरेट कौन करेगा? वो उन्होंने, चूँकि हमारे बड़े भाई के पास में, कमर हयात साहब के पास में उर्दू सीखी थी, तो उनके पास में गए। उन्होंने कहा कि साहब मुझे जो है वो उर्दू कंप्यूटर तो ला लिया हूँ, लेकिन इसको चलाने वाला कोई मिल नहीं रहा है। तो उस ज़माने में मैं 96 तक मैं सऊदीया में था।
6 साल, तो मैंने उस वक़्त कंप्यूटर ऑपरेट किया था मैंने, तो मैं उसकी शुद्ध-बुद्ध रखता था। तो मैंने कहा कि भई मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, चलिए। मैंने फिर कंप्यूटर पर तो वहाँ एक बच्ची भी आती थी, तो उसको भी सिखाया मैंने, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप कोई बड़ा काम ले आइए इसके ऊपर और उसको खुद टाइप कीजिए पूरा। तो मैंने अपनी ये किताब हाफ़िज़ विलायतुल्लाह वाली जो है वो कंप्यूटर पे टाइप किया, तो और मैंने फिर उर्दू अकेडमी को भेज दिया उसका मसौदा। वहाँ से उर्दू अकेडमी से ग्रांट मंज़ूर हो गई शाये होने की। तो वो तो भी मतलब वो मैंने पूरे पैसे उस ज़माने में शायद 5,000 मुझे सैंक्शन हुआ था, तो मैंने श्याम भोसकर साहब को दे दिया कि भई इससे आप जो है किताब छाप दीजिए। तो उन्होंने पूरा डीडीपी वगैरह अपडेट करके वो शाये हुई पहली किताब, मेरा ख़्याल है पूरे विदर्भा में कंप्यूटर पे पहली किताब शाये हुई। तो अच्छा लगा वो कि भई अपनी पहली किताब आई है, मैंने खुद टाइप किया उसको। जी सर। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, खासतौर से मैंने आपको बरसों पढ़ा है, शायरी पर आपने खूब तनकीद की है। तहकीक के साथ साथ में तहकीक और तनकीद पर आपकी कई किताबें भी जो है शाये हुई। आपकी निगरानी में दर्जन, 1.5-2 दर्जन से ज़ायद तलबा ने जो है पीएचडी की है। तो तहकीक और तनकीद के में आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक अपना मुकाम रखते हैं, साथ ही तख्लीकियत भी आप में है। तो एक सवाल है कि अफ़साने की तनकीद पर आपका क्या रद्द अमल होता है, और तनकीद को आप किस तरह लेते हैं, और उससे आप तनकीद को अपने काम में बेहतरी के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं? या और जो हमारे नए लिखने वाले हैं, उन्हें आप तनकीद के ताल्लुक से क्या जो है कहना चाहेंगे कि अगर उनकी तख्लीक पर तनकीद होती है, तो उसे किस तरह लेना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने रेहान भाई। असल में तनकीद जो है वो पॉज़िटिव होना चाहिए, दिलादारी के लिए नहीं होना चाहिए, किसी का दिल दुखे। होता क्या है आजकल हो रहा है ये कि आप देखिए ये व्हाट्सएप ग्रुप है या मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत सारे अफ़सानचे आते हैं, अफ़साने आते हैं, लोग तनकीद करते हैं उसके ऊपर। कुछ तो ग्रुपिज़्म का शिकार हो जाते हैं। मेरे ग्रुप का है तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा पज़ीराई करूँगा, तो जो उसकी कमियाँ रहती हैं, उसको भी खूबी बताने लगते हैं। और बाद औक़ात क्या होता है कि ग्रुप से बाहर आदमी है और वो हमारा शनासाई नहीं है, तो उसको तनकीद जिसका मतलब खूबी होती है, तो उसको भी उसके अंदर ख़ामी और कमज़ोरी करके उसको बताया जाता है। तो इससे बालातर होना चाहिए आदमी को। तो अगर ये हो तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तनकीद अच्छी चीज़ है। तनकीद बराए तनकीद ना हो, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह हो, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, तनक़ीस ना हो, समझे? उसके अंदर बुरा पहलू तलाश करने का मंशा ना हो, बल्कि ये मंशा हो हमारा कि भई सामने वाला को की में इस्लाह पैदा हो, और वो जिन फ़न को नहीं समझ पा रहा है, अगर मान लीजिए उसमें कुछ फ़नी कमज़ोरियाँ हैं, तो वो फ़न से वाकिफ़ हो जाए और आइंदा आने वाली तख़लीक़ात में उससे वो सबक लेते हुए उसकी इस्लाह करे और वो कमियों को दूर कर दे। ये मंशा अगर है तनकीद निगार का, तो ये बहुत अच्छा वो है। तो और मैं जब भी किसी अफ़साने पर या किसी तख़लीक़ पर तनकीद करता हूँ, तो मैं इस पहलू को ख़ास तौर से पेश नज़र रखता हूँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि भई किसी की दिल आज़ारी हो और वो बाज़ आ जाए। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आदमी जो है उससे लिखने से ही बाज़ आ जाता है, बोलता है मैं नहीं लिखूँगा भई, बहुत लोगों ने मेरा मज़ाक उड़ाया है। तो मज़ाक करना अलग बात होती है, मज़ाक उड़ाना अलग बात होती है, तो मज़ाक ना उड़ाया जाए, समझे? ये अच्छा पहलू नहीं है, बल्कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, और अदब जो है, अब देखिए गिने-चुने लोग रह गए हैं लिखने वाले। तो अगर हम आपस में एक-दूसरे की हौसला अफ़ज़ाई नहीं करेंगे, और तो ज़ाहिर बात है कि हमारा वो जो है एक लिखने वालों का ग्रुप है, वो कम से कम होते जाएगा। तो इसका ख़्याल रखते हुए एक-दूसरे की पज़ीराई करना चाहिए, हौसला अफ़ज़ाई होनी चाहिए, ताकि सिलसिला बने रहे। जी सर, जैसा कि आपने बताया, व्हाट्सएप पर बहुत सारे और फेसबुक पर भी बहुत सारी फ़ोरम हैं। अब आलमी अफ़साना फ़ोरम है इस तरीके के, और भी फ़ोरम्स है। व्हाट्सएप पर कई ग्रुप है, बज़्म अफ़साना ग्रुप है, अफ़साना निगार ग्रुप है। उसी तरीके से अभी एक अफ़साना नुमा ग्रुप शुरू है। इस तरीके से अफ़सानचों पे काफ़ी ग्रुप है। तो आप किस तरह, मतलब सोशल मीडिया और अफ़साना या फ़िक्शन के ताल्लुक को आप किस तरह देखते हैं? आपकी नज़र में सोशल मीडिया से अफ़साना या जो फ़िक्शन को फ़ायदा हुआ है, या इसमें कुछ नुकसान हुआ है? तो फ़िक्शन और
सोशल मीडिया के ताल्लुक के बारे में जो है आपकी क्या राय है, क्या नजरिया है? रेहान भाई, मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा सिलसिला है, क्योंकि नई टेक्निक जो है इसको हमको अपनाना चाहिए। नया टेक्निक है, ये एक नया जमाना है, नई सोच है, और तो एक दूसरे से आदमी जुड़ता है। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा जो है उस वक्त नजर आया हमको जब कोरोना फैला था। लोग अपने अपने घरों में मुकैयद थे, अखबार तक नहीं आ रहे थे घरों में, रिसाइल तक बंद थे। तो यही एक मीडिया था, सोशल मीडिया ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप था, फेसबुक ग्रुप था, और ये ऐसे ग्रुप थे जिससे एक दूसरे से आदमी जुड़ा हुआ था, और वो सिलसिला हुनूस जारी है। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा सिलसिला है। और एक ज़ाहिर बात है कि एक नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव बना लिया हमारे अफ़साना निगारों ने और हमारे तख्लीक़कारों ने। और मैं समझता हूँ यही पॉजिटिव बात जो होती है, मुस्बित सोच होती है, यही इंसान को बड़ा भी बनाती है, बढ़ाती भी है आगे। तो ये अच्छी चीज़ हुई कि इसके अंदर अक्सर लोग कहते हैं कि मोबाइल जो है बहुत ख़राब चीज़ है। तो मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ का इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। वो बज़ाते खुद वो चीज़ खराब नहीं होती है, बल्कि उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। तो मोबाइल जो है उसका अगर आप सही इस्तेमाल करें, तो ज़ाहिर बात है कि वो अच्छी चीज़ है। तो मोबाइल पर और मीडिया पर अगर ये चीज़ आ रही है, अच्छे अफ़सानचे आ रहे हैं, अच्छे-बुरे जो भी अफ़सानचे आ रहे हैं, उस पे तनकीद हो रही है, तो ये अच्छी चीज़ है। उससे नई नस्ल भी जुड़ती है, हमारे शौक की और ज़ौक़ की आबियारी भी होती है, और लिखने का हौसला भी बढ़ता है। तो ज़ाहिर बात है, मुझे तो अच्छी चीज़ लगती है, और मुझे बल्कि सीखने का भी मौका मिलता है उसमें। जी सर। अब एक ऐसा सवाल कि सर, मैं तो आपको जब पढ़ा, मैंने कई मर्तबा मेरे मुशाहिदे में रहा कि वो आपके कुछ वाक़यात पर या कुछ जो मुशाहिदात होते हैं उस पर ही आपकी कहानी का ताना-बाना रहता है। लेकिन यहाँ पर पूछने का एक मकसद, एक सवाल ये है कि ऐसा कोई वाक़या जिसको आपने अफ़साने में पेश किया हो और उस वाक़ये को पेश करने के बाद आपको इत्मीनान हुआ हो कि हाँ, मैंने इस वाक़ये के साथ और साथ ही साथ अफ़साना निगारी के साथ जो है मैंने इंसाफ़ किया है। तो ऐसा कोई वाक़या जो आपको याद हो और जिसका इस्तेमाल आपने अपने अफ़साने या अफ़सानचे में किया हो, उस ताल्लुक से जो है वो आपका कोई कोई याद हो तो उसे शेयर कीजिए। अब मैंने अभी जैसे रेहान भाई ज़िक्र किया कोरोना का, है ना? कोरोना के ज़माने में लोग अपने-अपने घरों में दुबके हुए थे, और एक सियासत अलग चल रही थी हिंदुस्तान में कि ये कोरोना जो है इसके फैलाने वाले कुछ मख़सूस तबके के लोगों को बताया जा रहा था, और मरकज़ का नाम लिया जा रहा था दिल्ली के। तो मैं भी अपने घर में बैठा था नागपुर में, तो उस वक़्त में जब वो हम मोबाइल देखते थे या टीवी सुनते थे, तो उस वक़्त में बड़ी तकलीफ़ होती थी। तो मैंने बैठा कुरान शरीफ पढ़ रहा था मैं, तो सूरह कहफ पढ़ रहा था। सूरह कहफ पढ़ते-पढ़ते मुझे अचानक ख़्याल आया कि मैंने कहा यार, सूरह कहफ में जिस तरह से वो लोग वो जो असहाब कहफ थे, तो वो गार में ज़ाहिर बात है को जिसको हम कहेंगे कि वो नींद में थे, जिसको आज ज़माने में कहें कोमा में थे वो। तो अब वो कोमा में 1-2 दिन के लिए, 2-3 महीने के लिए नहीं, बल्कि 300 साल तक कुरान मजीद में ज़िक्र है कि वो कोमा में रहे, और फिर बाद में उनकी आँख खुली और वो बाज़ार में गए और उन्होंने नया माहौल देखा। तो उनको बिल्कुल सब सारी चीज़ें बदली-बदली नज़र आई। तो यहाँ से मुझे जो है एक कहानी मिली, और मैंने उसपे एक करुणा का खेल करके कहानी मैंने लिखी, उसपे अफ़सानवी अंदाज़ में। तो उसमें भी मैंने यही बताया कि एक शख़्स था, सादिक नाम का, तो वो अस्पताल में कोमा में 3-4 महीने से पड़ा था, और अचानक उसकी नींद खुली तो देख रहा है तो कहीं उसको नज़र नहीं आया कुछ भी। तो वहाँ से मैंने कहानी बुनी उसकी, और फिर वो करते-करते मैंने उसमें ये भी लाया कि किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक ख़ास मुहिम चल रही थी, और उसके अंदर उनको बताया जा रहा था कि ये कोरोना फैलाने वाले लोग हैं, और जिसका कि अभी आपने देखा कि वो भी कोर्ट का फैसला भी आया कि ऐसी कोई बात नहीं थी उसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि इस किस्म के वाक़यात जो है मुझे थोड़ा-सा मुतासिर भी किए हैं, और मैंने उसपे कहानियाँ भी लिखी हैं, और उस लिखने के बाद मुझे इत्मीनान भी हुआ उसमें। जी सर। कोरोना का खेल जो है वो मैंने पढ़ा है, उस पे तबसरा भी किया था मैंने। वाक़ई में उसको एक साथ इतने सारे वाक़यात को जो है कहानी के धागे में उसको पिरोना और उसमें फ़िक्शन
اور افسانوی فضا پیدا کرنا، یہ کافی خوبصورت اور وہ کورونا کال کا جو ہے اس دور کا لکھے ہوئے کچھ عمدہ افسانوں میں اس کا بھی شمار انشاءاللہ آگے کیا جائے گا. آگے جب طلبہ جب تحقیقی کام کریں گے تو جب وہ اتھل پتھل ہوگی اور جب اسے کھنگالا جائے گا تو انشاءاللہ آپ کا وہ جو افسانہ ہے وہ اوپر ہی اوپر تیرتا ہوا نظر آئے گا. بہرحال اب ایک ہمارے سوال جواب کے سلسلے کا آخری سوال، اس میں میں یہ سبھی لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، سبھی ہمارے افسانہ نگاروں سے، تو یہ کہ کیا آپ کے نزدیک جو افسانہ نگاری ہے اس کا مستقبل کیا ہے، آپ کس طرح اس کے مستقبل کو دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کے خیال میں افسانہ نگاری کیا ہے اور افسانچہ نگاری کیا ہے. تو ان دونوں کی آپ کے حساب سے جو تعریف پیش کرنا ہے کہ افسانہ نگاری کیا ہے، افسانچہ نگاری کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کا جو مستقبل ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ افسانہ نگاری اور افسانچہ نگاری، یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ دونوں الگ چیزیں ہیں، ہے نا. کہاں سے افسانہ کتنا طویل ہونا چاہیے اور کتنا مختصر ہونا چاہیے، آج تک اس کا تعین نہیں ہوا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ افسانہ جو ہے کتنا طویل ہونا چاہیے اور وہ کہاں ناولٹ ہو جاتا ہے اور کہاں ناول بن جاتا ہے، یہ اس کا بھی کسی نے تعین نہیں کیا ہے ابھی تک. اور تو افسانہ ظاہر بات ہے افسانہ ہے، اور کتنا مختصر ہو کہ وہ افسانچہ کہلائے. آپ نے تو 100 لفظی افسانچے لکھے ہیں، کچھ لوگوں نے 50 لفظی بھی لکھے ہیں، کچھ لوگوں نے 2 سطری بھی لکھے ہیں. تو افسانے وہ بھی افسانہ ہے، 2 سطری افسانے بھی افسانے ہیں، 100 لفظی بھی افسانے ہیں، اور مان لیں 4 صفحے پر ہیں تو وہ بھی ایک افسانے سر ہیں، وہ منی افسانے ہیں. ایک میں بھول نہ جاؤں، آپ آگے اپنی بات کیجئے. آپ ضرور سر اس کا ذکر کیجئے، آپ نے جو ایک مختصر سا ایک افسانچہ جو لکھا ہے اس کا ذکر یہاں ضرور کیجئے سر. ٹھیک ہے ہاں، سر، آگے. تو افسانچے جو ہے وہ کتنے مختصر ہوں کہ وہ افسانچے رہتے ہیں اور کتنے طویل ہوں کہ وہ افسانہ ہو جاتا ہے، اس کا تعین نہیں ہے ابھی تک. مجھے ایسا لگتا ہے کہ افسانوں کے اندر جو ہے مکمل ایک اگر بات آ جاتی ہے سامنے تو وہ افسانہ ہے مکمل. جیسے میں کیوں دور جائیں، میں نے ایک بہت ہی مختصر صرف 1-2 لائن کے ایک افسانہ لکھا تھا میں نے، کہ سمرن یاسمین کی خوبصورت نقوش والی حسین و جمیل سہیلی تھی. ایک دن یاسمین اپنے شوہر کو غلطی سے سمرن کے گھر لے کر چلی گئی. یہ اتنا مختصر افسانچہ ہے یہ، کہ اب یہ دیکھیے اس کے اندر پوری کہانی موجود ہے نا. سمرن جو ہے یاسمین کی سہیلی تھی، اور وہ اس کے اندر آپ کتنی بھی اس کو پھیلا لیجیے آپ کہ اس کو گھر لے جانے کے بعد میں کیا ہوا اس کا، یعنی شوہر کو. آپ بلکہ ایک جگہ میں نے سنایا تھا تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نئی لڑکیوں کے لیے تو بولے وہ ہے، بولے اس کے اندر سبق بھی ہے کہ وہ اپنے خوبصورت سہیلی کے ساتھ نہ لے کے جائیں اپنے شوہر کو، ہے نا، اس کے گھر نہ لے کے جائیں. آپ نے یہ ریمارک دیا تھا شاید. تو گیا میرا یہ تو 2 لائن کا افسانچہ ہے. کچھ لوگ طویل افسانے بھی لکھتے ہیں اور وہ افسانچے ہوتے ہیں. ابھی میں نے خود 3-4 افسانے آپ کو سنایا، تو کچھ بہت مختصر تھے اور کچھ زیادہ طویل تھے، لیکن بہرحال اس میں ایک بات تو آ رہی تھی سامنے. تو افسانے میں جو ہے ایسا نہ ہو کہ وہ تاریخ بنے. یعنی کسی نے کہا تھا کہ افسانے میں نام اور تاریخ اور جگہ جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن تاریخ میں جو ہے وہ نام اور اس کے سوا ساری باتیں موجود رہتی ہیں. نام صحیح ہوتے ہیں اس کے اندر اور تاریخ صحیح ہوتی ہے، لیکن باقی کی جزیات جو ہوتی ہیں اس کے اندر، تاریخ کے اندر، اتہاس میں، وہ اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ واقعہ صحیح بیان کیا جا رہا ہے کہ نہیں. لیکن یہاں الٹا ہے ہمارے افسانہ میں. افسانے میں واقعات کو جوں کو توں رکھتے ہیں، ناموں کو بدل دیا جاتا ہے، سمجھے، تو تاریخ کو بدل دیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے جگہ بھی بدل جائے، لیکن واقعات صحیح ہوتے ہیں بالکل. تو جو صحیح بات ہوتی ہے تو دل کو لگتی ہے. تو اسی لیے ہمارا ادب یا افسانہ جو ہے وہ دل کو چھوتا ہے، کیونکہ وہ حقائق پر مبنی ہوتا ہے، سمجھے. حالانکہ اس کو افسانہ کہا جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ افسانہ جو ہے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، اور جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ دل کو چھوتی ہیں، ہے نا، ہم کو متاثر کرتے ہیں، اور اسی کا نام ادب ہے اصل میں. جی سر، آپ سانچے کے مستقبل کے بارے میں بھی تھوڑا سا سر، آپ کی نظر میں کیسا ہے مستقبل ہاں، اب دیکھیے افسانہ نگاری؟ افسانہ نگاری میں بلکہ ابھی جو ہے ایک بالکل لہر چلی ہوئی ہے افسانچہ نگاری پر، اور ہر
मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत सारे सीनियर अफसाना निगार भी अफसानचे लिख रहे हैं, नए की तो छोड़िए, नए तो लिख ही रहे हैं और वो समझते हैं कि हम तो यूँ लिख लेते हैं और नतीजा ये होता है कि कभी-कभी बात मुकम्मल नहीं हो पाती है। अफसाना लिखा तो जा सकता है अफसानचा, लेकिन जो बात होनी चाहिए कि जिसके अंदर आदमी फड़क जाए पढ़कर कि नहीं क्या बात कही है करके, वो बात नहीं आ पाएगी ज़बर। तो लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोशिश करते रहना चाहिए और उनको भी हमें भी चाहिए कि उनको एप्रिशिएट करें। तब कहीं न कहीं वो बात बन जाएगी और वो एक अफसानचा निगार भी हो जाएँगे कहीं न कहीं। क्योंकि आदमी सीखते-सीखते सीखता है, एकदम अचानक कोई चीज़ नहीं आती है सीखने में। तो मुझे लगता है कि उनको रोका ना जाए, बल्कि लिखें और उन्हें आजकल तनकीद भी हो तो रही है। तो तनकीद में अगर मान लीजिए कोई सख्त तनकीद करता है और उनको बताने की कोशिश करता है, तो ज़ातियात ना आए बीच में, ज़ाती तनकीद ना हो, बल्कि फ़न के ऊपर बात हो, तो ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन हमारे यहाँ हमने देखे हैं हमारे ग्रुप में जो है अक्सर अफसानचा ग्रुप है, बहुत सारे हैं, तो अफसाना ग्रुप है, उसमें लोग जो है ज़ाती तनकीद करने लगते हैं। तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अफसानचे का भी मुस्तकबिल बेहतर है, क्योंकि आज ये भागती-दौड़ती दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं कि लोग मुख्तसर चीज़ों को ज़्यादा पसंद करने लगे। तो चूँकि अफसानचे मुख्तसर होते हैं और इसके अंदर हमको एक ज़हनी सुकून मिलता है पढ़ने के बाद में, बहुत मुख्तसर वक़्त में, इसलिए मुझे इसका मुस्तकबिल बेहतर नज़र आ रहा है। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे आप बात करके। और हाँ, मुझे भी आज हमें पता चला कि आपके वालिद मोहतरम जो है वो वकालत के पेशे के साथ-साथ जो है वो शेर भी कहते थे। ये एक नई बात सामने आई। साथ ही पहली कहानी जो है प्यार का भूखा, वो शाये हुई और उसके बाद से वो भूख आपकी बढ़ती गई और हम तो यही ख्वाहिश करेंगे कि वो भूख और भी बढ़ती जाए और अदब में हाँ, आपकी इस भूख से अदब में ये बात आपकी सही इस कहा भूख आपने से कि मैं प्यार का भूखा अभी भी हूँ। जी, जी, जी। वो भूख मिटनी नहीं चाहिए सर। क्या है कि हाँ, अदब जो है वो तसलसल का नाम है सर। बहुत सारे आपने देखा होगा कि अच्छा लिखते हैं, लेकिन वो कुछ बहुत सारी ऐसी वजूहात होती है छोटी-छोटी सी कि जिसकी वजह से वो लिखना छोड़ देते हैं। बहरहाल आपका काफ़ी जो लंबा अदब में सफ़र रहा, वो सफ़र को समझने का, साथ ही अफ़साना निगारी और ख़ास तौर से अफ़सानचा निगारी के ताल्लुक से आपके मुशाहिदात, तजुर्बात और आपके नज़रियात को समझने का आज मौका मिला। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही सर फ़िक्शन के 3 जो ख़ास सेक्शन हैं, एक अफ़साना निगारी, एक अफ़सानचा निगारी और एक नाविल जो है। तो मैं सर आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो आपका नावल है आतिश फ़िशां, तो मैं चाहता हूँ अगर आप मुनासिब समझें तो उसकी किस्तवार पॉडकास्ट जो है वो पेश की जाए और उसमें जहाँ गालिबन मेरे ख्याल से 21 बाब है, तो हर बाब पर एक पॉडकास्ट आपकी रिकॉर्ड की जाए और उसको जो है मध्य भारत टाइम्स में पेश किया जाए। तो ऐसी मेरी ख्वाहिश है सर, अगर आपको मुनासिब ये लगे तो मेरे लिए तो हम बड़ा एज़ाज़ है। हर हफ्ते वो आतिश फ़िशां जो नावल है, चूँकि वो नागपुर के पस मंज़र पर है सर, तो मैं चाहता हूँ कि वो हम पेश करें और उसपे हम हर शनिचर को जो है उसको पेश कर सकते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद हर शनिचर को जी, एक बाब हम पेश जी, कर जी। सकते हैं। तो वो हमारा जो नावल का जो हिस्सा अभी छूट रहा है, तो वो भी सर आगे साथ-साथ में चलता रहेगा। तो बहरहाल सर आपका इस बहुत-बहुत शुक्रिया। इस अच्छे काम को जो है आपके सिवा कोई दूसरा कर भी नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप जैसे मेरे को मेरे जो रहनुमा हैं, मेरे को जो मशवरा देते रहते हैं, ये सब आप लोगों की जो हौसला अफ़ज़ाई है कि मैं कुछ कर पाता हूँ। आप लोग हमेशा मेरा साथ देते हैं। चाहे मैं अल्फ़ाज़ीन के ताल्लुक से कोई भी ख़ुसूसी शुमारा निकालूँ, आप लोगों को जब मैं तकलीफ़ देता हूँ, तो आप लोग हमेशा लब्बैक कहते हैं। ख़ास तौर से जो नागपुर से जो आप हैं, असदुल्ला सर हैं और वकील नजीब साहब हैं और कामठी के जो हमारे लिखने वाले हैं, तो उनका साथ है, इस वजह से हम कुछ कर पाते हैं सर। तो बहुत शुक्रिया सर, आपको सुनकर, आपको जानकर बहुत खुशी हुई। आइंदा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आतिश फ़िशां का जो सिलसिलावार पॉडकास्ट है, उसको हम पेश करें। चल इसी के साथ मैं अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम किसी और मेहमान के साथ मिलेंगे।
آپ کا بہت بہت شکریہ.